आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम के लिए जम्मू कश्मीर के 5 रोजा दौरे पर आए तमिलनाडु के नौजवानों के वफद से की मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने जिला सतह की आधार मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत। जिले में आधार सैचुरेशन की पेशरफ्त का भी लिया जायजा। अंजुमन शरीशियान ने शाम में अवाम के दरमियान पुरअमन हल और इत्तेहाद की पुरजोर की अपील। शाम के तमाम फिरकों और बरादरियों को बैरूनी मदाखलत के बगैर खित्ते में जारी मसाइल के हल के लिए बाहमी ताउन से काम करने की जरूरत पर दिया जोर। और एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत ने फिर की कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार। जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद, अमन और तरक्की के अपने मजबूत नजरिए को किया उजागर। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज तमिलनाडु के नौजवानों के एक वफद से बातचीत की है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम के लिए जम्मू कश्मीर के 5 रोजा दौरे पर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों का खैरमकदम किया और जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान हासिल किए गए तजुर्बात और कसीर जहती नुमाइश के बारे में जानकारी उनसे हासिल की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजारत तालीम के युवा संगम पहल की भी सताइश की है, जिसका मकसद मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के नौजवानों के दरमियान अवाम से अवाम के राब्ते को मजबूत बनाना है। उन्होंने नौजवानों से मुतल्लिक मखसूस और नौजवानों से मुतल्लिक पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर भी बातचीत की है, जो गुज़श्ता 10 सालों में शुरू की गई हैं, ताकि उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक साजगार माहौल बनाया जा सके। Welcome. I am pleased to be with all of you this afternoon. First of all, I would like to thank Ministry of Education for this great initiative of Yuva Sangam, aimed at strengthening people-to-people connect among youth across different states and union territories. Jammu Kashmir is paired with Tamil Nadu under this initiative to promote unity in diversity by facilitating meaningful interactions, cultural exchange and knowledge sharing among youth. When I look at the two regions, I see the inspiring chapters of rich ancient Indian history, contribution of men and women who shaped the destiny of our country. And I must tell you that there is a timeless bond between Tamil Nadu and Jammu Kashmir. I strongly believe that Jammu Kashmir and Tamil Nadu are eternally connected since time immemorial. Friends, I vividly recall my visit to Chennai in January 2023 to attend the Vitasta festival under Azadi Ka Amrit Mahotsav and my interaction with youth at Kalakshetram Foundation. I find such engagement the most powerful instrument to strengthen our unity. I am truly grateful to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who has unlocked the power of diversity with the spirit of oneness. The great Thiruvalluvar had written that learning lacks meanings if learner believes not in him. I see the youth of our country are full of self-confidence today and not scared or afraid of exploring the unknown. The social consciousness of our youth is sharp and they have big dreams, not just for themselves, but for the development of this great nation. This gives me hope that you will not only contribute to the betterment of society, but you will also achieve the self-growth. I am also happy to see that all the modern facilities are being made available to our youth and they are empowered. Youth-specific and youth-related policies and programs have been launched in the last 10 years to create an enabling environment to realize their dreams. Now,
our youth have started thinking about the future that they want. They are also working towards constructive change for a prosperous society and nation based on equality and social justice. I hope during your visit to Jammu and Kashmir you will have multi-dimensional exposure under 5 broad areas as envisaged in the Yuva Sangam initiative. I also hope that in the years to come more and more such exchange will take place. I invite you all to enjoy our hospitality and enjoy the incredible sights and sounds of Union Territory of Jammu and Kashmir. I wish you all a bright and happy future. Thank you once again. Jai Hind. डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने आज डीसी ऑफिस मीटिंग हॉल में जिला सतह की आधार मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत की है ताकि जिले में आधार सैचुरेशन की पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके और अंदराज और अपडेट से मुतल्लिक चैलेंजों से निपटा जा सके। मीटिंग के दौरान डीसी मौसूफ ने सरकारी खिदमात और फवाइद तक रसाई के लिए एक दस्तावेज के तौर पर आधार की अहमियत पर जोर दिया और रिहायशियों खासतौर पर उन लोगों पर जोर दिया जिन्होंने 1 तिहाई से ज्यादा अरसे में अपने आधार अपडेट नहीं किए हैं। अपनी आबादियाती तफसीलात, बायोमेट्रिक्स और मावन दस्तावेजात को अपडेट करें। वालिदैन को मशवरा दिया गया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके आधार को फाल रखने के लिए 5 से 15 साल की उम्र में उनके बच्चों के आधार बायोमेट्रिक तफसीलात को अपडेट किया जाए। डीसी मौसूफ ने मुतल्लिका अहदेदारों को मजीद हिदायत की है कि वो आउटरीच प्रोग्रामों में इजाफा करें और रिहायशियों के लिए आधार अपडेट्स की सहूलत के लिए मुनासिब वसाइल फराहम करें। एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत ने कांग्रेस हेडक्वार्टर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करहा की मौजूदगी में दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जमात में रहकर उनका मकसद जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद, अमन और तरक्की के अपने मजबूत नजरिए को उजागर करना है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों और कम्युनिटी की वेलफेयर की हिमायत में कांग्रेस के किरदार की तारीफ की है। सबको, मैं तो सभी लोगों को बोलूंगी कि वी नीड टू सपोर्ट द कांग्रेस, वी नीड टू, बिकॉज़ कांग्रेस हैज द आइडियोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट द आइडियोलॉजी। एंड मुझे लगता है मेरे जैसे लोग या जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो एक आइडियोलॉजी को ही सपोर्ट कर सकते हैं, और वो आइडियोलॉजी जो डिवीजन में बिलीव नहीं करती है, जो स्ट्रेंथनिंग में बिलीव करती है, वेलफेयर में बिलीव करती है, पीस में बिलीव करती है। सो दैट हैज मेड मी टू ज्वाइन बैक द पार्टी अगेन, बिकॉज आई हैव टू बी विद एन आइडियोलॉजी और अपने प्रिंसिपल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। सो माई principles are with the ideology which Congress carries. ये मुझे बताया कि and जम्मू कश्मीर के लिए है सर, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, and that is why I am here again. और मैं I'll try my level best कि मैं बेस्ट दे सकूं, मैं जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान के लिए काम कर सकूं under the guidance of our President साहब, करा साहब, and with other leaders. I'll try my level best कि मैं अच्छे से काम कर सकूं। आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे चौड़े समय तक जो कश्मीरी पंडित का जो कार्ड है वो खेला अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर हम पर्टिकुलरली जम्मू की बात करें, कश्मीर में तो उतना उसका ग्रिप था नहीं, लेकिन जम्मू में एक भारी अक्सरियत से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत वहां पे दर्ज की। तो करंटली जम्मू को कैसे देखते हैं आप, और इस एक पॉलिटिकल प्ले कार्ड को कैसे देखते हैं आप? See, the political play card which Bharatiya Janata Party has been playing, I must say, playing with the emotions, sentiments of people, और उनको वो कैश तो कर लेना, उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस के साथ खेल तो लेना, उसको कैश भी कर लेते हैं। बट देखने की बात यह है कि क्या वो उनके साथ एक्चुअली खड़े होते हैं? आई बिलीव वो खड़े नहीं होते हैं। अगर आप कश्मीरी पंडित्स का ही देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, डू यू थिंक कश्मीरी पंडित्स हैव रिटर्न बैक? डू यू थिंक देयर वेलफेयर, देयर रिहेबिलिटेशन हैज बीन एंश्योर्ड? इट वाज कांग्रेस. It was Congress which ensured the welfare. It was Congress which ensured their, the setup in Jagti or the PM's package. Right. Do you think Bharatiya Janata Party has done? Bharatiya Janata Party has not done anything. It is Bharatiya Janata Party, if at all Bharatiya Janata Party is doing, it is only playing with the emotions, sentiments. Use करते हैं, यूज करने के बाद भूल जाते हैं. दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट. कोई शक नहीं है इस बात का कि आज आप एक मैसेंजर बनने जा रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए. व्हाट इज योर मैसेज टू देम? माय मैसेज फॉर माय कम्युनिटी इज टू स्टे टुगेदर, स्टे यूनाइटेड एंड अंडरस्टैंड करें कि उनके साथ कौन था पास्ट में और उनको उन्हीं के साथ खड़े. देखिए एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स. जो आपके साथ तब था
आपको उसके साथ खड़ा होना है। जिसने आपको घर दिया, जिसने आपको छत दी, जिसने आपको रोजगार दिया, यू नीड टू बी देयर विद द पीपल। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया हमें? आपको क्या दिया? कश्मीरी पंडितों को क्या दिया? एक्सेप्ट फ्रॉम प्लेइंग, एक्सेप्ट फ्रॉम हिंदू कार्ड, व्हाट भारतीय जनता पार्टी डज? नथिंग, right? So my message for my community is that they need to support Gandhi's ideology, Nehru's ideology. They need to be there for the welfare of, not for the welfare of one community, for the welfare of the whole of the state of Jammu and Kashmir. And it's about the state of Jammu and Kashmir. It is about the statehood. It is about our identity. It is about the peace. It is about the development. It is not about the division. मैम आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर आप कांग्रेस में थी तो आपने कांग्रेस छोड़ा क्यों और दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन किया? क्या ये लीडरशिप क्राइसिस थे या कुछ और? देखिए, ये कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं थे। कुछ पर्सनल रीजंस थे, मनमुटाव हो सकता है और ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं होता है। I also had my personal reasons. Now today it's such a बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत एक जुमा भी है। मैं शंकराचार्य से दर्शन करके भी आई हूँ। मुझे नहीं लगता we need to dig the जो पीछे past. Let's forget that. Let's start afresh. आज एक नई बिगनिंग है। Why I left was a separate question. आज बात ये करें कि मैं क्यों आई हूँ और मेरी आइडियोलॉजी क्या है। My ideology is that I need to work for the development of Jammu and Kashmir. Right? Let's forget what happened in past. सदर अंजुमन शिरीशियान आगा सैयद हसन ने आज शाम में अवाम के दरमियान पुरअमन हल और इत्तेहाद की पुरजोर अपील की है। नमाज जुमा के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक हुर्रियत रहनुमा ने इस बात पर जोर दिया है कि शाम के तमाम फिरकों और बरादरियों को बैरूनी मदाखलत के बगैर खित्ते में जारी मसाइल के हल के लिए बाहमी ताउन से काम करना चाहिए। उन्होंने शाम में बैरूनी ताकतों की शमूलियत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दूसरे ममालिक को शाम में तनाज़ा को भड़काना नहीं चाहिए। शाम के अवाम के लिए जरूरी है कि वो अपने इख्तिलाफात को बातचीत और बाहमी मज़ाकरात से हल करे। आगा सैयद हसन ने बांग्लादेश में हिंदू बरादरी पर हालिया हमलों की भी मज़म्मत की है। अगर साहब जिस तरह से शाम में हालात बने, हालांकि आपने जुमा खुतबा में भी इसका जिक्र किया, तो किस तरह से शाम के हालात पर आप बात करेंगे, किस तरह से तजिया करेंगे? नवीद थोड़ा रहो। पूरा आलम इस बात का मुतकाजी है जो इस वक्त शाम की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है और बाइस तशवीश है। हम ये चाहते हैं जितने भी शाम के मसालिक हैं, कबीले हैं, वो सब मिलकर अपने मर्जी से और अपने ख्वाहिश से अपना निज़ाम तय करे। वही शाम के लिए बेहतर रहेगा। उसी से पूरे शाम में अमन अमान कायम हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है। मैं इसी पर जोर देता हूँ। शाम के लोगों को मौका दिया जाए, वो अपने हुकूमत खुद बनाए, दूसरा कोई इसमें मुदाखलत करने से दूर रहे, वही शाम के लिए बेहतर है। किस तरह से शाम का मसला मुस्लिम ममालिक के लिए या मुस्लिम दुनिया के लिए मतलब किस तरह से इसका असर मुस्लिम दुनिया पर होगा? ये बहुत गंभीर मसला है। अगर माबर के रिहायशी सादिक आलम ने अपनी मकामी कम्युनिटी में एक फरोग पज़ीर फिश फार्म कायम करके खुद इन्हसारी की एक मिसाल कायम की है। सरकारी नौकरी का इंतजार करने के बजाय उन्होंने इस अमल में आज़म और अमली महारत का मुजाहरा करते हुए अपनी रोजी रोटी पैदा करने में पहल की है। सिर्फ एक साल में सादिक आलम के फिश फार्म
तरमीम के मंसूबे ने तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए का शानदार कारोबार हासिल किया है। इसकी कामयाबी लोगों के लिए अपने वसाइल को बरोकार लाकर देही इलाकों में भी अपने कारोबार बनाने की सलाहियत को उजागर करती है। इसका शानदार सफर कम्युनिटी में दूसरों के लिए एक मुतासिर कुन मिसाल के तौर पर काम करता है, जिससे जाहिर होता है कि मेहनत, लगन और पहल के साथ खुद रोजगार एक काबिल अमल और मुनाफा बख्श रास्ता हो सकता है। मेरा नाम सदीक आलम है। मैं यहाँ मोनाबाल में बांडी में रहता हूँ और पिछले 2 साल से मैं इस फिश फार्मिंग के साथ लगा हूँ, वाबस्ता हूँ जी। तो आजकल जो है बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो मुझे आइडिया है क्योंकि हमारी जो हमारी ज़मीन यहाँ पर थी, तो मुझे लगा कि ये कहीं बेकार है, तो मैंने इसी बीच सोचा कि मैं क्या कुछ ना कुछ इसमें करूँ। तो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट की मदद से, फिश डिपार्टमेंट की मदद से मैंने यहाँ पर एक प्राउड फिश यूनिट खड़ा किया। तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी इनकम मैं इससे जनरेट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आजकल नौजवानों को जो है वो नौकरी के पीछे न दौड़े, अपना कोई बिजनेस कोई ना कुछ खड़ा करे ताकि वो अच्छे से पैसे कमा सके। तो हाँ बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त कम से कम 4 से 5 जो है इस वक्त बंदे जो है हमारे साथ काम करते हैं, तो उनका घर भी चलता है और इंशाल्लाह हमारा घर भी अच्छे से चलता है। फिश डिपार्टमेंट के बगैर तो कोई कुछ मुमकिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमें सब्सिडी दी ये सब बनाने में। तो और जो उनके वो ऑनेस्ट अफसर है, उन्होंने काफ़ी हमारा सपोर्ट किया सब में ये सब बनाने में। मैं पढ़े लिखे आज के जो नौजवान है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी टांगों पर खड़ा हो, कुछ ना कुछ करें, ये गवर्नमेंट जॉबों के पीछे न पड़े, ताकि आजकल जो हमें बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, मुझे लगता है कि उनका फायदा उठाए, तो वो मतलब कभी भी मतलब उनको ये नहीं लगेगा कि हम बेरोजगार हैं। एक पायदार मुस्तकबिल की तरफ सफर में एक अहम संग-मील को निशानजद करते हुए मरकज बराए माहौलियात की तालीम के ताउन से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़रिए एहतमाम इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर 2 रोजा नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है और रीजनल अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी का आज जम्मू में इफ्तिताह किया गया है। वर्कशॉप का इफ्तिताह हाउसिंग और शहरी तरक्कियात महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप कौर ने किया है। 2 दिन की वर्कशॉप सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के साथ मिलकर जेएमसी ऑर्गेनाइज करा रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर अलग अलग डंपिंग साइट्स का बायो रेमेडिएशन किया जा रहा है। 30 से ज़्यादा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं। डोर टू डोर कलेक्शन अच्छे से चले और कूड़ा कचरा हमारी सड़कों पे ना रहे, इसके लिए सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। इस वर्कशॉप में पूरे जम्मू कश्मीर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ईओस म्यूनसिपैलिटीज़ के आए हुए हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम के डायरेक्शंस के अंडर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 1.5 साल में, यानी कि 2026 मार्च तक हमारे सारे ही स्वच्छ भारत मिशन के प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं और हमारे जम्मू कश्मीर को हम सही मायने में स्वच्छ बना सकें। आज की ये वर्कशॉप इसी दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में एमबीबीएस के तालिब इल्मों ने आज एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने एसआरओ 49 की बहाली का मुतालबा किया है। एक ऐसी पॉलिसी जो 75% नशिस्तें खुली रखती है। तलबा ने हुकूमत के हालिया इकदाम की शदीद मुखालफत करते हुए इसे एक गैर मुनसिफाना फैसला करार दिया है, जो उनके हकूक और मौके को मजरूह करता है। मेडिकल तलबा के एक ग्रुप की तरफ से मुनक़िदा इस एहतजाज का मकसद पॉलिसी में हुकूमत के हालिया तरमीम के हवाले से अपनी शिकायत को उजागर करना था। मेडिकल तलबा के मुताबिक मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी का रियासती सेहत की देखभाल के निज़ाम पर भी बहुत बुरा असर हो रहा है। तलबा ने आला हुकाम से मदाखलत का भी मुतालबा किया ताकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके और खित्ते के तमाम तिब्बी पेशावर अफराद के लिए एक मुनसिफाना और शफ़ाफ़ पॉलिसी को यकीनी बनाया जा सके। तो आपका मतलब ये है कि इस पे ये भी फर्क होगा जो आने वाले जो आप इस जो रिजर्वेशन सिस्टम इंटैक्ट है अभी जो स्टेट में जो JNK में रिजर्वेशन पॉलिसी है, पहले तो इतनी रिजर्वेशन किसी भी और स्टेट्स में आप देखोगे उस हिसाब उसमें उनमें पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन है, बट नॉट इन JK। इन JK वी सी व्हाट कि 70% जो पॉपुलेशन है उनको उनके लिए 26.6 सीट्स अवेलेबल है, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड दिस इज़ अ सिंपल थिंग दैट इज़ सो ईजी टू कॉम्प्रहेंड फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट।
सेकंड जो है जो रूल 17 है, रूल 17 के अकॉर्डिंग जो एक कैटेगरी वाला बंदा है वो अगर ओपन मेरिट में उसको सीट मिल जाती है तो वो कैटेगरी यूज़ करता है टू गेट हिज डिज़ायर्ड ब्रांच और टू गेट हिज डिज़ायर्ड कॉलेज, लेकिन उसकी जगह जो सीट खाली हो जाती है उस जगह पे दूसरा कैटेगरी वाला बंदा आ जाता है। तो इस हिसाब से ये जो पूरा सिस्टम है, दिस इज़ इट सीम्स टू मी एज इफ ये कैटेगरी वाले लोगों के लिए ही बनाया गया है। जस्ट 26.6% सीट्स फॉर 70% ऑफ द पॉपुलेशन। इस हिसाब से लगता है कि वाई आर इवन ओपन मेरिट कैंडिडेट्स फाइट कम्पीटिंग इन दिस। कोई कम्पीट करने का भी मतलब नहीं है। मतलब मैं तो एट टाइम्स ये सोचती हूँ वाई आर दे गिविंग 100% टू कैटेगरी, सो दैट कि जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स है वो इतनी मेहनत करते हैं फिर उसके बाद उनको नहीं मिलता है जो वो चाहते हैं, उसकी वजह से ना ही उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उनकी इमोशनल हेल्थ पे असर पड़ता है। पूरी तरह ना ये सिस्टम इनको हैंडीकैप कर देता है। नाउ व्हाई डू आई से हैंडीकैप? पहले इनको सीट नहीं मिलती है डिस्पाइट पुटिंग देयर बेस्ट, डिस्पाइट गेटिंग द डिज़ायर्ड मतलब रैंक जो उनको चाहिए होती है, वो ऑल इंडिया रैंक जो उनको चाहिए होती है वो उनको मिलती है। इतनी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत ही अच्छी रैंक होती है, बट स्टिल आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू गेट इट। तो उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और वहाँ से जॉब भी गई, फाइनेंशियली भी वो स्टेबल नहीं रहते। तो in a way it cripples open merit population, it just crushes them। तो ये हो गया रूल नंबर 70। एंड देन जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है इसमें ये भी है कि बहुत सारे लोग ये डिज़र्व भी नहीं करते, उनको ये मिलती है। बहुत सारे EWS कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इनकम नहीं होता है फिट इनकम क्राइटेरिया में, और बहुत सारे रिजर्व बैकवर्ड एरियाज़ के बंदे हैं जो नहीं एक्चुअली रहते हैं उन रिजर्व बैकवर्ड एरियाज़ में। तो देन गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर कि कौन कौन डिज़र्व कर रहा है, उन्हीं को मिलनी चाहिए। पहले तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से मिलनी चाहिए। सो वी वॉन्ट SRO 49 back for that। Second rule number 17 जो है that should be eliminated। Third, government should look into this matter that who is deserving this category certificate, only that person should be given it। तो third जो कि PG में तो ज़्यादा ही है, because in UG में तो कैटेगरी के बेसिस पे बच्चों को सिलेक्शन हो गई, उसके बाद शेयरिंग द सेम कॉलेज, शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज, शेयरिंग एवरीथिंग, उनको फिर नीट PG में फिर से हाउ इज़ अगेन कैटेगरी जस्टिफाइड दैट? अगर उनको सेम ही मिल रहा है फिर इसी कॉलेज, फॉर इंस्टेंस GMC बारामूला है, कल को अगर नीट PG में यहाँ 2 बंदों की सिलेक्शन हो जाती है, एक बंदा कैटेगरी वाला है, इसी कॉलेज से पढ़ा है, उसको 60K रैंक है, दूसरा बंदा ओपन मेरिट का है, इसी कॉलेज से पढ़ा है, उसको 6K रैंक है, ही विल बी एबल टू गेट वट एवर ही डिजायर्ड दिस 60K कैंडिडेट बट नॉट दैट 6K कैंडिडेट। हाउ इज़ दिस जस्टिफाइड? दिस इज़ लाइक आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को बिठा रहे हो मेडिकल फील्ड में और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि हेल्थ केयर बहुत अच्छा होना चाहिए। यही चाहते हैं हम कि SRO 49 should be brought back, rule number 17 should be eliminated, this whole reservation system should be given according to the population, that's it। लाल चौक की तालब तंजीम ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनके मुताबिक खरीदारों को मौजूदा वक्त में शदीद परेशानियों का सामना है। उनके मुताबिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद से कारोबार कमजोर हो रहा है और इस दौरान उन्होंने पार्किंग के स्लॉट की इजाफी कीमतों पर भी नाराजगी जाहिर की है। कैंडिडेट ये पर्सन है और कैंडिडेट का ये, मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट को सैम्पल चाहिए, कैसे प्रचार करना है न्यूज़पेपर में। भैया हम बीइंग अ प्रेसिडेंट हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, 4 दिन में हम क्या करें? उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा हमें ऊपर से जी प्रेशर है, जस्ट ऊपर से प्रेशर है। मैंने कहा क्या प्रेशर है ऊपर से? ट्रेड के ऊपर भी कोई प्रेशर करने वाला है? कहा हमें जी पुलिस का प्रेशर है। पुलिस अपनी जगह और हम अपनी जगह। एक मिनट जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, दैट इज अ फैक्ट, उसमें सब डिसबैंडेड है। उसने जो बोला है वो गलत ही है, क्योंकि नहीं जस्ट इनको बताने दीजिए। ही इज अ फैक्ट, ही इज आउट ऑफ दिस एसोसिएशन एंड जो गैदरिंग वहाँ पे थी ऑल दे आर डिसबैंडेड, नोबॉडी इज ऑन हिज पोजीशन। यासिन खान भी थे ना, वो KTMF नहीं, ही इज अंडर स्टे। वो अभी KTMF अभी फंक्शनल नहीं है। दैट्स नॉट, KTMF इज नॉट फंक्शनल। जो स्टे आप लोगों की तरफ से लाया, दैट्स फॉर ट्रेड, दिस नॉट फॉर। हाँ जी, जो आप लोगों ने स्टे लाया था वो कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप से बात है, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। ना इलेक्शन से भी ये बात है। नहीं, जब मेरी बात हुई ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उनने कहा मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे को 4 दिन में इलेक्शन करना है। मैंने कहा मेरे को आई एम नॉकिंग द डोर्स ऑफ कोर्ट। मैं कोर्ट गया और मैंने उसको स्टे लाया। आपसे ज्यादा लोग उनके साथ में भी थे कल, तो कैसे हम माने कि वो गलत है, आप सही है? नहीं, लोग जब आप मेरी बात सुने, अब मेरी ये देखें ना, मेरा आई हैव गॉट द लिस्ट ऑफ दीज ना हु इज विथ मी। हमारा जो मैंडेट है उसकी हमने लिस्ट बना के रखी है।
वो हमारे बिल्कुल साथ में। हम हमें ये इट्स नॉट एनी, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है। तो मेन पर्पस क्या है आज? मेन यही है, ऑल दे आर डिसबैंडेड। जो भी वहाँ एक पार्टी उधर खड़ी थी, दे आर फ्रॉम कोर्ट रोड, वो भी हारी हुई पार्टी है। एक फेरोज बाबा है, उनका तो ये सामने बिल्कुल है। और हु इज द थर्ड पर्सन देयर? ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसको हम जिस दिन हमने मिनट्स बुलाए थे, मिनट्स से हमने लिखा था गुलाम अहमद डार को 1 मिनट देने की। 4 दिन के बाद उन्होंने डिसॉल्व किया था अखबार में, और वो किया था, साथ ही लिखा था उसमें फ्रेश इलेक्शन ऑफ द TSL shall be held on October 2024 under the supervision of member nominated by the Kashmir Traders and Manufacturers Federation Mohammed Aslam Muttu shall be the election commission। जिस वक्त हमने कंटैक्ट किया था KTM को, उन्हें बोला हमारा कोई मोहम्मद असलम मुत्तू का इलेक्शन कमीशन नहीं था, ये फ्रॉड उन्हें अखबार में दिया था। हमने कंटैक्ट किया था इलेक्शन कमीशन को, हमने बोला 2 दिन और करो, वोटिंग लिस्ट इनकम्प्लीट है, बायलॉज इनकम्प्लीट है, अथॉरिटी इनकम्प्लीट है, उन्हें बोला हमें कोई प्रेशर है। हमने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगरचे हमारा मामला ACP की तरफ से देखा जा रहा है, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत कर इस मामले को 1 हफ्ते के अंदर हल करने का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक उनसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वादा किया था कि फायर एंड इमरजेंसी की फहरिस्त को मंसूख किया जाएगा, मगर ऐसा कोई भी अमल नहीं किया गया। उन्होंने मामला हल न होने की सूरत में एक बड़ा एहतजाज करने की भी धमकी दी है। आप पे भरोसा किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर अपनी बात आगे रखी, मगर इट इज़ अनफॉर्चुनेट अभी तक फायर सर्विस की रिपोर्ट जो है, इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है। अब ये साफ साफ दर्शाता है कि ये जो ACP है ये आईवाश है, बाकी कुछ नहीं है। इस प्लेटफार्म के जरिए से ये बात हम LG मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको हम 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद लाल चौक के अंदर प्रोटेस्ट होगा। LG मनोज सिन्हा साहब, आई एम गिविंग यू 1 वीक टू पब्लिक द रिपोर्ट ऑफ RK गोयल लेड कमिटी। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की सड़कों पे फायर सर्विस एस्पिरेंट्स अनगिनत भीड़ देखने को मिलेगी। अगर अनटुवर्ड्स प्रोटेस्टरों के साथ कुछ भी होता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद LG साहब को लेनी है। हम ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये केस ACP को सौंपा है, हम मानने के लिए तैयार है। रिसेंटली जो ACP का डायरेक्टर है, मैंने उसके साथ अपॉइंटमेंट किया और उसने कहा कम से कम मुझे 2 साल तक रिपोर्ट खंगालने में लग जाएंगे। उसके बाद हमें FIR लॉन्च करने हैं जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया। उसके बाद ये लॉन्ग प्रोसेस बन जाएगा, ये कोर्ट में केस चला जाएगा, वहां पे भी 10 साल लग जाएंगे। हम इस प्लेटफार्म के जरिए से LG मनोज सिन्हा साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें एडजस्ट किया जाए, हमें नौकरी दिया जाए, ACP को अपना काम करने दो। जब तक ACP का रिपोर्ट जब आएगा, अगर वो हमारे फेवर में आएगा तो ठीक है, अगर वो हमारे अगेंस्ट ACP का रिपोर्ट आएगा, हम वॉलंटियरली उस वक्त रिजाइन कर देंगे। मेहरबानी कीजिए LG मनोज सिन्हा साहब, आपने 12 अगस्त को मुझे और मंजूर साहब को जम्मू राजभवन बुलाया, आपने हमारे साथ एक वादा किया, आपने कहा कि इस लिस्ट को मैं स्क्रैप कर दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह कहना पड़ता है वी आर क्राइंग सिंस 2020 बट अनफॉर्चुनेटली LG ऑफ दिस ड्यूटी नेवर लिसन आवर वॉइस बट द जेन्युइन इशू ऑफ फायर एंड इमरजेंसी स्कैम। LG मनोज सिन्हा साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं आपको वार्न करता हूं, जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स है वो सारे के सारे लाल चौक जाम करने वाले हैं। लाल चौक के अंदर लाशें बिछेंगे हमारे एस्पिरेंटों की। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली LG मनोज सिन्हा साहब, आपके बच्चे नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट हमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट, ये पब्लिक सर्वेंट है, उनको पब्लिक का काम करना है। जब हम सड़कों पे आएंगे, जब हमारा खून सड़कों पे बहेगा, तब LG मनोज सिन्हा साहब के आंखें खुल जाएंगे। LG मनोज सिन्हा साहब, हमने आपको हर एक भाषा में सुनाया। मैं यूपी गया, मैंने यूपी में देखा कौन सी भाषा बोलती है, वहां पे ज्यादा लोग उर्दू में बात करती है। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हमने आज उर्दू में आपको समझाया। मेहरबानी कीजिए, 3 बार मैं आपसे मिल चुका हूं और आपने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता
है, हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे है, अब 10 से मस्त नहीं हो रही है। रिसेंटली आपका एक स्टेटमेंट आया एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने कहा अगर जम्मू कश्मीर के लोग 78% लोग कहेंगे कि मैंने काम कुछ नहीं किया, मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, यूपी चला जाऊंगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब मुझे बताइए आपने क्या काम किया जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, मुझे बताइए। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे है, आपने मुझे रिसेंटली जम्मू भी बुलाया, आपने कहा इस लिस्ट को मैं स्क्रैप कर दूंगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आप मुझे बताइए आप इन स्कैमर्स को बचाना चाहती है, वो होने नहीं देंगे। लास्ट पे मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हाथ जोड़ता हूं एलजी मनोज सिन्हा साहब, मेहरबानी कीजिए, जो आपने एसीबी को रिपोर्ट सौंपा है, एसीबी के डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे 2 साल लगेंगे खंगालने में, मेहरबानी कीजिए इस रिपोर्ट को पब्लिक में लाइए। हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सारे एस्पिरेंट्स, जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स, जितने भी चाहे एसएससी के रिलेटेड हो, जेके एसएसबी के रिलेटेड हो, जहां हमारे पेरेंट्स, हम सीधे लाल चौक जाम करने वाले हैं। जब तक हमारा खून सड़कों पे बहेगा नहीं, हमें लग रहा है कि तब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाएंगे। सीआरपीएफ की 35वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गाम में मुफ्त टीबी कैंप का इनेकाद किया है। बटालियन कमांडेंट विष्णु द्विवेदी ने जरूरतमंद मकामी अवाम की मौजूदगी में मुफ्त टीबी कैंप का इफ्तिताह किया है। इस मुफ्त टीबी कैंप के दौरान मकामी अवाम को मुफ्त टीबी चेकअप और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी आबादी ने सीआरपीएफ डॉक्टरों से सेहत की जांच और इलाज के लिए शिरकत की है। करीबी इलाकों से तकरीबन 255 अफराद ने अपने हेल्थ चेकअप और मुफ्त टीबी मशावरत के लिए रजू किया है। जो गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स होती हैं, इसमें इसको सिविक एक्शन प्रोग्राम्स कहा जाता है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी उसके तहत होते हैं। आज का प्रोग्राम है फ्री मेडिकल कैंप। फ्री मेडिकल कैंप इसलिए लगाया गया है कि जो यहाँ पे हमारे आम कॉमन मैन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या दूर नहीं जा सकते हैं, बीमार हैं, तो हम उनके दरवाजे तक लेकर आए हैं। ये हमारे अपने कैंप पे फ्री मेडिकल कैंप जो आज लगा हुआ है, यहाँ हमारे 3 डॉक्टर्स, ढेर सारे ऑफिसर्स और सारी दवा के साथ अवेलेबल हैं। जो भी यहाँ पे आसपास के लोग हैं जिनको भी मेडिकल की ज़रूरत है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, उनका प्रॉपर चेकअप किया जाएगा। जो अवेलेबल दवाइयाँ हैं वो दवा दिया जाएगा, उनको सारा प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से फ्री प्रोवाइडेड है। यहाँ पर किस तरह का इलाज है? क्या हर कोई तरह का, मतलब किसी भी तरह की जो बीमारी होती है, किसी भी तरह का किसी बहुत गंभीर बीमारी का तो तत्कालिक इलाज यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो एक कॉमन बीमारियाँ होती हैं जिनका तत्कालिक दवाई दिया जा सकता है, ऐसी सारी चीज़ों को तुरंत दिया जाएगा। अगर कोई आदमी गंभीर बीमार है, उसका कुछ पता चलता है, तो हमारे डॉक्टर्स उसको आगे रेफर कर देंगे। आज मैं आया था यहाँ पे, जहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे लगा हुआ है बॉयज़ हायर सेकेंडरी बड़गाम में सीआरपीएफ की जवानों की तरफ से। ये बहुत ही एक अहमियत हमारी ज़िंदगी में रखता है, क्योंकि ख़ासकर गरीब आवामों के लिए सबसे बड़ी अहमियत हमारी मतलब रखता है इस ज़िंदगी में। दूर दराज इलाकों से आते हैं लोग यहाँ पे फ्री मेडिकल जब ही सुनते हैं, मतलब एक जब हम एक समाजी काम के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये जो फ्री मेडिकल कैंप जो अभी बड़गाम में लगा हुआ है, तो एक अच्छा हमारे, मतलब मैं कह सकता हूँ एक अहमियत रखता है हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सीआरपीएफ जवानों की तरफ से, जिन्होंने ये इकदाम उठाए इस बड़गाम। ये जो कैंप लगा है ना 35A का, सीआरपी कैंप 35A का, उन्होंने इतनी फैसिलिटी रखी कि अगर हम पर्चा लेकर जाते हैं, ये खुद भी मेहनत करते हैं, साथ आते हैं, और एक पर्चे में कम से कम 10 हज़ार का दवाई जो बाजार से मिलता है वो देते हैं ये मुफ्त। तो इनकी फैसिलिटी अगर लोगों को आएगा एक महीने में 4 बार, क्योंकि यहाँ बहुत बीमारी है। मोदी का जो दवाई दुकानों पे होता है वो आम दुकानों में नहीं मिलता है। हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे बहुत लाइन लगते हैं, वो तो 5 रुपए की पर्ची होती है, 10 हज़ार का दवाई देते हैं, वो भी नहीं मिलता है। ये अच्छी बात है, इन्होंने 35A में आज बहुत बड़ा, ये तीसरी बार इन्होंने किया, ये एक ही बार नहीं तीसरी बार इनकी फैसिलिटी है। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।